Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 29 नवंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा. एंड तक बने रहिएगा. चलिए स्टार्ट करें. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विच एडिशन ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली. इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 में हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ. पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन था इसका जो अभी ऑब्जर्व किया गया हमारे द्वारा. तो ये 5th एडिशन था. ठीक है, कौन सा एडिशन था? 5th एडिशन था. 15 से लेके 17 नवंबर के बीच में हमने इसको ऑब्जर्व किया न्यू दिल्ली में. एंड ये एक एपेक्स लेवल रीजनल स्ट्रेटेजिक डायलॉग था जो कि इंडियन नेवी के द्वारा कराया गया था. फिर इसी की एक थीम आ जाती है जिसके ऊपर ये इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हुआ था. ये थीम को नोट करके ज़रूर चलिएगा. जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स अपॉन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी. ठीक, फिर यहीं पे याद रखेंगे यहाँ पर हमें 4 MOUs भी साइन किए गए बाय नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के साथ. ठीक, फिर अब जैसे ये बेसिकली है क्या, जो हमारा रीजनल डायलॉग, जो हमारा एरिया है इंडो पैसिफिक रीजन, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए. राइट, हम जानते हैं एशिया पैसिफिक रीजन में अगर हम देखें तो सिक्योरिटी से रिलेटेड एक और हमारा ग्रुप बना हुआ है, वो है क्वाड ग्रुप. क्वाड ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं. कौन कौन से? US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. करेक्ट. ये भी एक एक्सरसाइज कराते हैं, मालाबार एक्सरसाइज. क्यों कराते हैं? ताकि चाइना की प्रेजेंस को इंडो पैसिफिक रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन में कम कर सके. राइट, उसका दबदबा वहाँ पे कम हो सके. सिमिलरली इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग बेसिकली ये कराया गया ताकि इंडिया के आसपास का जो नेबरिंग का एरिया है, राइट, जो वहाँ पे जैसे हम अगर देखें, यहाँ पर आ जाता है आपका बे ऑफ बंगाल, इधर आ जाता है अरेबियन सी, इधर आ जाता है इंडियन ओशन. तो इस रीजन को यहाँ पे सेफ्टी बनी रहे. राइट, और यहाँ पे श्रीलंका आपका, तो यहाँ पे सेफ्टी बनी रहे, इस एरिया में कोई दिक्कत ना आए. राइट, कोई दूसरी कंट्री आके, जैसे चाइना क्या करता है कि श्रीलंका में भी इन्होंने पोर्ट ले लिया था. तो इससे क्या होता है कि दूसरी कंट्री जब प्रेजेंस दिखाती है, और खासकर चाइना, क्योंकि चाइना के साथ हम जानते ही हमारे रिलेशन कितने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन ना उभर के आए और हमारा ही यहाँ पे दबदबा रहा इस एरिया में, ये कराया गया. ठीक है, और ये 5वां एडिशन था, याद रखेंगे. नेक्स्ट आ जाता है किस फोर्स ने कंडक्ट कराया नेट पोलरेक्स 9 ऑफ गुजरात फॉर असेसिंग मरीन ऑयल स्पिल रेडीनेस. हम जानते हैं जब बड़े बड़े आपके शिप्स जब किसी ऑयल कंटेनर्स को लेके जाते हैं, राइट, शिपमेंट्स को लेके जा रहे होते हैं फॉर एक्सपोर्ट, तो क्या होता है कई बार ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस वो जो कंटेनर है ना वो स्पिल हो जाता है और आपका ओशन में जो ऑयल का स्पिल हो जाता है. इस ऑयल का स्पिल बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए. एक तो जो वहाँ पे जिस एरिया में ये स्पिल होया है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ओशन है, तो इसके ऊपर ऑयल की परत जम जाएगी. राइट, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है फॉर द
फॉर द बायोडाइवर्सिटी जो नीचे होती है। फिर इसी ऑयल को क्या होता है कि जो वहाँ के नीचे के एनिमल्स हैं, राइट, वो कंज्यूम कर लेते हैं, तो उनकी उससे काफ़ी ज़्यादा डेथ्स भी हमें देखने को मिलती हैं, राइट। इससे क्या होता है, जो हमारा पानी है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे स्पिल्स को फिर जब साफ़ भी करना पड़ता है ना, जब हम ऑयल को हटाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो ऐसे स्पिल्स ना हो सके, और ऐसे स्पिल्स हो भी तो जल्दी से जल्दी उसको साफ़ करा जाए ताकि बायोडाइवर्सिटी पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, राइट। ऐसे प्रैक्टिसेस कराई गई, ऐसे यहाँ पे अभी वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई गई, काफ़ी सेमिनार्स हुए, जिससे जो ये ऑयल स्पिल है इसके ऊपर कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और कैसे प्रिवेंट करने के बाद भी अगर हो जाता है ऑयल स्पिल तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी हम साफ करके हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना होने दें। तो यही आपकी नेट पोलरेक्स एक्सरसाइज थी, करेक्ट। अब ये नेट पोलरेक्स है क्या, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं नेट पोलरेक्स क्या है। नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। तो ये नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज 9th नेट पोलरेक्स, और ये 9 का सिंबल है, राइट। तो ये 9वीं कंडक्ट कराई गई किस फोर्स के द्वारा, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, आईसीजी के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया था, ठीक। 24-25 नवंबर को इसको कंडक्ट कराया गया। कहाँ पर, गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पर, वादिनार कोस्ट पर इसको कंडक्ट कराया गया, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, जैसे मैंने एम बताया, क्या रहेगा कि जो ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, मरीन ऑयल स्पिल्स होते हैं, उससे रिलेटेड हम पहले से प्रिपेयर रह सकें, एंड उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए ये कंडक्ट कराई गई इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ये तो थी 9वीं एक्सरसाइज। अगर मैं बात करूं 8वीं, वो कहां पर कराई गई थी, वो 2022 में हुई थी, एंड गोवा में हुई थी। मोरमोगोआ हार्बर, वो आपकी गोवा में हुई थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं किस कंट्री ने भी ऑर्गेनाइज कराया एक 5 डे मिलेट फेस्टिवल इन इंडोनेशिया टू एनहेंस फूड सिक्योरिटी विद एशियन। अगर हम मिलेट्स की बात करें, हम जानते हैं मिलेट से काफ़ी फाइब्रस फूड होता है, राइट। इससे काफ़ी न्यूट्रिशंस भी मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, काफ़ी हार्डी क्रॉप होती है, बहुत इजीली ग्रो की जा सकती है, राइट। एंड इवन इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी बोला, इंकरेज करा था कि जो इंडियन फोर्सेज है ना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, इनकी जो डाइट्स हैं उसमें हमें फाइबर्स को, ये मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनटेक करना चाहिए, करेक्ट। और हम जानते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स कौन सा है, वो है 2023। इसी के अंडर यहाँ पे ये फेस्टिवल कराया गया, मिलेट्स फेस्टिवल। 5 दिन लंबा ये मिलेट फेस्टिवल था, और किस कंट्री ने इसको ऑर्गेनाइज कराया, हमारी खुद की इंडिया, हमारी कंट्री ने, इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था। लोकेशन क्या रहेगी जहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, इंडोनेशिया में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, राइट। तो ये था इंडियन मिशन टू एशियन, एशियन क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो बेसिकली इन एशियन नेशंस में हम मिलेट्स का एंकरेज कर सकें और मिलेट्स के बारे में लोगों को जानकारी दे सकें, करेक्ट। इससे रिलेटेड एग्जीबिशंस हों, डिस्कशंस हों, कुकिंग वर्कशॉप्स कराई गई, ताकि इसका एक बेसिकली एम क्या रहेगा कि एशियन कंट्रीज मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे, और इसको जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है मिलेट्स की, इसको अपना सके, इसका यूज़ बढ़ सके। इसका यूज़ बढ़ेगा तो हम देखेंगे इंडिया, क्योंकि ये करा रहा है, और इंडिया के द्वारा ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स 2023 जो डिक्लेयर किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, तो इससे क्या होगा, इंडिया के एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था 5 डे लॉन्ग मिलेट्स फेस्टिवल, और कहाँ पर, इंडोनेशिया में। फिर इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपसे और मैं क्वेश्चन पूछूं, ज़रा बताओ, अभी उत्तर प्रदेश ने अपना स्टेट एनिमल किसको डिक्लेयर किया है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल, स्टेट एक्वेटिक एनिमल क्या डिक्लेयर करा गया है, वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन को स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया, राइट। फिर इसी के साथ साथ बताओ, अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश ने कितने % रिजर्वेशन करने की बात की फॉर वीमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स में 35% रिजर्वेशन करने की बात करी फॉर वीमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स, और मध्य प्रदेश ही वो स्टेट है जो मॉब लिंच्ड विक्टिम्स को कंपनसेशन प्रोवाइड कराएगा। फिर यहीं पे कम, अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो बिहार ने कितनी रिजर्वेशन कराई फॉर ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फॉर जुडिशियल सर्विसेज। जुडिशियल सर्विसेज के लिए कितनी % रिजर्वेशन कराई गई, तो 10% यहाँ पे रिजर्वेशन कराई गई, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्हीं के द्वारा यूपीआई लॉन्च किया गया था, राइट। तो इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, जो भी पेमेंट एप्लीकेशन है, जैसे आपकी फ़ोन पे हो गई, राइट, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, तो ये एप्लीकेशंस बेसिकली, राइट, इन पे जो भी आपकी
यूपीआई आईडीज़ हैं जो कि इनएक्टिव यूपीआई आईडीज़ हैं, जो यूज़ में नहीं आ रही हैं, उन यूपीआई आईडीज़ को डीएक्टिवेट करने की बात की गई बाय विच डेट? तो 31 दिसंबर 2023 तक इन यूपीआई आईडीज़ को डीएक्टिवेट करने की बात की गई, उन यूपीआई आईडीज़ को जो कि यूज़ में नहीं है और वो ऐसे ही यूपीआई आईडी है, कोई उनको यूज़ नहीं कर रहा है। करेक्ट। इससे किसके द्वारा ये इंस्ट्रक्शन दी गई? एनपीसीआई के द्वारा। और कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक ये इन यूपीआई आईडीज को डीएक्टिवेट करने का काम किया जाएगा। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ जरा बताओ, अगर आपसे पूछा जाए सोलर साइकिल ट्रैक, एक सोलर साइकिल ट्रैक बनाया जा रहा है कहां पर? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में बनाया जा रहा है। फिर एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस, कौन से एडिशन की अभी एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस हुई थी? 16th एडिशन हुई थी। कहां पर हुई थी? कोची, केरला में हुई थी। और याद रखेंगे, केरला वो स्टेट है जिसकी हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉल मार्किंग सेंटर रहेगा। फिर वो फोर्थ स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने ई कैबिनेट सिस्टम को अपनाया, ई कैबिनेट सिस्टम को अडॉप्ट करा है? वो कौन सी स्टेट रहेगी? वो है त्रिपुरा। और त्रिपुरा ने ही पिंक टॉयलेट्स लॉन्च किए। राइट। फिर किस कंट्री को री इलेक्ट कर लिया गया प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट का किनको री इलेक्ट कर लिया गया है प्रेसिडेंट? हमारी इंडिया को। नेक्स्ट, अभी सीडीएसएल वो पहला लिस्टेड डिपॉजिटरी बन गया टू रजिस्टर मोर देन 10 करोड़ डीमेट अकाउंट्स। अभी ये डिपॉजिटरी क्या होता है? बेसिकली आप जानते हैं, हम डीमेट अकाउंट से हम जो आपके शेयर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हम उनको बाय एंड सेल कर सकते हैं। राइट। तो ये जो बाय एंड सेल करते हैं, तो इसका जो हिसाब रखता है, कितना किनको अलोकेट किया जाएगा, किसके पास कितने शेयर्स हैं, राइट, उसका पूरा डाटाबेस रखते हैं, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन रखी जाती है, वो एक डिपॉजिटरी होती है। राइट। और ये सीडीएसएल वो पहली लिस्टेड डिपॉजिटरी बन गई जिसके पास मोर देन 10 करोड़ डीमेट अकाउंट्स रहेंगे। राइट, मार्क करके चलेंगे। तो ये पहली इंडियन डिपॉजिटरी बनी टू होल्ड मोर देन 10 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट्स। और डीमेट अकाउंट्स क्या है? जहां हम बाय एंड सेल कर सकते हैं अपने शेयर्स को, जैसे आप ग्रो प्लेटफॉर्म हो गया, ज़ेरोदा प्लेटफॉर्म हो गया। राइट। तो ये क्या है? ये डीमेट अकाउंट्स आपके खोलते हैं ताकि आप बाय कर सकते हैं, सेल्स को खुद ही बाय कर सकते हैं, खुद ही सेल कर सकते हैं। राइट, मार्क करके चलेंगे। फिर सीडीएसएल का याद रखेंगे, सीडीएसएल की एक सब्सिडरी है सीवीएल, जो कि है सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड। ये फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी रहेगी। करेक्ट, ये भी मार्क करके चलेंगे। इसी के साथ साथ अगर सीडीएसएल की मैं बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? नेहाल वोरा। यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। और 1999 में इसको एस्टैब्लिश करा गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं एसएनपी ग्लोबल पर। एसएनपी ग्लोबल ने अभी इंडिया की जो फिस्कल ईयर 24 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करी है वो कितनी है? पहले कितनी थी और अब कितनी है? पहले इन्होंने प्रोजेक्ट की थी 6%, लेकिन अभी 0.4% से बढ़ा दिया, मतलब 40 बेस पॉइंट से इन्होंने इसको बढ़ा दिया है। अब कितनी हो गई है? 6.4% इन्होंने प्रोजेक्ट करी है। राइट। 40 बीपीएस होता है, बीपीएस होता है बेसिस पॉइंट, राइट, बेसिस पॉइंट्स पर। और 40 बेसिस पॉइंट बढ़ना मतलब 0.4% का इंक्रीज होना। 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ना मतलब 1% का इंक्रीज होना। ठीक है। फिर यहीं पे याद रखेंगे, तो था फिस्कल ईयर 24 के लिए कितनी प्रोजेक्ट की गई? 6.4%। वहीं पे अगर मैं फिस्कल ईयर 25 की बात करूं तो 6.4% ही प्रोजेक्ट की गई। पहले थी 6.9%, लेकिन उसको कम करके अब 6.4% कर दिया है। राइट। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो अक्टूबर में जो सीपीआई डाटा आया है वो कितना है अक्टूबर मंथ के लिए? तो वो आया 4.9% का। वहीं पे जो जुलाई का अगर ये डाटा देखें तो 7.4% का था। ठीक। इसी के अलावा फ्रेंड्स, अगर कुछ और देखें जो और एजेंसीज के द्वारा यहाँ पे जो जीडीपी प्रोजेक्ट की गई है इंडिया की, जैसे एसएनपी के लिए अभी हमने देखा स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ग्लोबल के द्वारा जो 6.4% प्रोजेक्ट की गई। वहीं पे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा 6.3% प्रोजेक्ट की गई। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.3% प्रोजेक्ट की गई। मूडीज इनके द्वारा 6.7% प्रोजेक्ट किया गया। मॉर्गन स्टैनली इनके द्वारा 6.5% प्रोजेक्ट किया गया। आरबीआई के द्वारा 6.5% प्रोजेक्ट करा गया। ठीक है। नेक्स्ट,
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिटेल इन्फ्लेशन थी CPI स्लिप टू 4.9 इन अक्टूबर और 7.4 थी जुलाई में। एक और चीज़, चार्ली मुंगर, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, आप इनके बारे में पढ़िएगा ज़रूर, राइट। एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया 99 की एज में। आज ही सुबह ये न्यूज़ आई है कि चार्ली मुंगर इनका निधन हो गया। ठीक है, कमिंग बैक टू आवर करंट अफेयर्स, व्हाट इज द वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्टेड बाय मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी। मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा जो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का सेलेक्ट किया गया है वो क्या रहेगा, वो है ऑथेंटिक, राइट। ऑथेंटिक होता है जो कि सच है, जो फेक नहीं है, जो ट्रू है, राइट। ट्रू पर्सनैलिटी, ट्रू एकदम सच्चाई है जो, राइट, ऑथेंटिक। जैसे हम कह देते हैं ना कि आपने मान लो कोई आईफोन लिया, तो कई आईफोन हम देखते हैं फेक भी मार्केट में चलते हैं, राइट, कॉपीज जो होती हैं, जैसे शूज़ की भी कॉपी आती हैं। तो ये क्या ऑथेंटिक है, क्या ये रियल है या ये फेक है, राइट, तो वो ऑथेंटिक होता है। फिर अगर मैं बात करूं, कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा AI वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था, राइट। एंड मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा ऑथेंटिक वर्ड को डिक्लेयर किया गया वर्ड ऑफ द ईयर 2023। फिर इसी के अलावा हम देख रहे हैं कि जो मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी है ना, इनके द्वारा काफ़ी सारे वर्ड्स आ जाते हैं यहाँ पर, राइट। जैसे जो टॉप सर्च वर्ड रहे इंटरनेट पर, जैसे रिज क्या है, एक इंटरनेट ड्रिवन स्लैंग है जिसका मीनिंग रहेगा रोमांटिक अपील और चार्म। डीप फेक क्या होता है, अ टाइप ऑफ AI दैट कैन बी यूज टू क्रिएट रियलिस्टिक बट फेक वीडियोज और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। कोरोनेशन द एक्ट और ओकेजन ऑफ क्राउनिंग। देन डिस्टोपियन, द वर्ड रिलेटेड टू और बीइंग इन एन इमेजिन्ड वर्ल्ड और सोसाइटी जहाँ पे पीपल डीह्यूमनाइज्ड हो, फियरफुल लाइव्स जिए, करेक्ट। देन इगॉट एन एक्स क्या है, बेसिकली इलॉन मस्क के द्वारा ट्विटर की जो रीनेमिंग की गई वो एक्स की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर। अभी एंड्री रेजोलिना, इनको रीइलेक्ट कर लिया गया है मेडागास्कर का प्रेसिडेंट फॉर द थर्ड टर्म। तीसरी टर्म के लिए इनको रीअपॉइंट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर, राइट। फिर इसी के अलावा अगर आपसे और कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूं, जैसे बताओ ग्लोबल CEO ऑफ पेयू कौन बने हैं। ग्लोबल CEO वो हैं अनिर्बन मुखर्जी। फिर इसी के साथ साथ अभी जियो मार्ट ने किनको अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, वो है MS धोनी को, राइट। साउथ इंडियन बैंक के जो चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं, विजय कुरियन, राइट। और फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुई थी, राइट। ये जो टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस थी ना, ये 6ठी एनुअल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस थी, इसका नाम था इन्फिनिटी। कहाँ पर हुई थी, ये नोएडा में हमें देखने को मिली इन्फिनिटी। नेक्स्ट, रजत कुमार जैन, इनको अपॉइंट किया गया है पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ फिनो पेमेंट्स बैंक, राइट। याद रखेंगे कि इनको अपॉइंट किया गया है पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ फिनो पेमेंट्स बैंक, वो है रजत कुमार जैन को, करेक्ट। 24 नवंबर से लेके 1 नवंबर 2025 तक ये इस पोजीशन में रहेंगे एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ फिनो पेमेंट्स बैंक। अगर मैं बात करूं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया की क्या रैंक रहेगी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 111, ठीक है, 111। फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज 2023, राइट, किसके द्वारा चेयर की गई, तो UAE के द्वारा इसको चेयर किया गया। किसके द्वारा, UAE के द्वारा इसको चेयर करा गया, ठीक। फिर इसी के साथ साथ बताओ फास्टेस्ट वर्ल्ड कप सेंचुरी किसके द्वारा बनाई गई थी अभी, तो रोहित शर्मा के द्वारा बनाई गई थी फास्टेस्ट वर्ल्ड कप सेंचुरी, राइट। फिर इसी के साथ साथ बताओ अभी रिसेंटली अगर आपसे पूछा जाए द बुक ऑफ लाइफ, द बुक ऑफ लाइफ, ये बुक किसके द्वारा ऑथर की गई, तो ये बुक विवेक अग्निहोत्री के द्वारा लॉन्च की गई, करेक्ट, उनके द्वारा ऑथर की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, वो भी टेनिस की बात करते हैं। तो टेनिस से रिलेटेड होता है आपका डेविस कप, और इस बार का डेविस कप किसके द्वारा जीत लिया गया है, इटली के द्वारा डेविस कप जीत लिया गया है। इन्होंने किनको हराया फाइनल्स में, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल्स में हराया टू विन दिस डेविस कप, ठीक है। और याद रखेंगे ये इटली का सेकंड टाइम है कि इन्होंने डेविस कप को जीता, पहली बार जीता था 1976 में और इस बार सेकंड टाइम जीत लिया है। इस डेविस कप की बात करें तो ये 111वां एडिशन रहेगा इस डेविस कप का, और जो ये फाइनल मैच हुआ था ना इनके बीच में, ये कहाँ पर हुआ था, स्पेन में हमें देखने को मिला था, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो अभी ICC वर्ल्ड कप हुआ था, मेंस वर्ल्ड कप, ODI का, वनडे इंटरनेशनल का, इंडिया में हुआ था, किसके द्वारा जीता गया, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। एंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था जो कहां पर रहेगा, अहमदाबाद में रहेगा। अहमदाबाद कहां पर है, गुजरात में। नेक्स्ट यहीं पे आप देख सकते हैं, अगर इसकी बात करूं मैं
तो कनाडा, अगर अभी एक रैंकिंग भी आई थी डेविस कप की नेशन रैंकिंग, तो यहाँ पे टॉप पे रही कौन सी कंट्री? इटली। सेकंड आ जाती है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे रहा। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं ग्रैंड पिक्स की, राइट, F1 रेसिंग की, जिसमें आप कार की रेसिंग होती है, मोटो जीपी होती है बाइक की रेसिंग, ठीक है। तो रेड बुल के जो ड्राइवर है मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने आबू धाबी ग्रैंड पिक्स को जीत लिया है एंड आबू धाबी ग्रैंड पिक्स को इनकी ये फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्री रहेगी, मतलब चौथी बार लगातार इन्होंने आबू धाबी ग्रैंड पिक्स टाइटल को जीत लिया है। मैक्स वर्स्टैपन की बात करें, एक और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, अभी 2022 में टोटल 22 इवेंट हुए थे, सॉरी 2023 में टोटल 22 ग्रैंड पिक्स हुई थी, जिसमें से 19 ग्रैंड पिक्स इनके द्वारा जीती गई और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ठीक है। और 19वीं कौन सी थी? ये 19वीं ही आपकी आबू धाबी ग्रैंड पिक्स है जो इनके द्वारा जीती गई है, मार्क करके चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये 22वीं लास्ट रेस थी 2022 के सीजन की। सेकंड पोजीशन पे कौन है? फरारी के चार्ल्स लेसलर एंड जॉर्ज रसल थर्ड पोजीशन पर है, जो कि मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, जो कि यूके से बिलोंग करते हैं। और टॉप पर कौन है? मैक्स वर्स्टैपन, बेल्जियन डच ये ड्राइवर हैं एंड रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के चाइना मास्टर्स के ऊपर। ये चाइना मास्टर्स इवेंट हुआ, बैडमिंटन से रिलेटेड है। टॉप किसने किया यहाँ पर? चाइना कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं हमारे इंडियन प्लेयर्स। कौन है वो है स्वास्तिक साईराज रानिक रेड्डी एंड चिराग सेठी। इन्होंने अभी रिसेंटली सेकंड प्लेस सिक्योर करी इन दिस BWF चाइना मास्टर्स 2023 में। मार्क करके चलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्यूट्री के ऊपर। ऑब्यूट्री से रिलेटेड देखेंगे, इंडियन वायलिनिस्ट एंड कर्नाटिक म्यूजिशियन B शशि कुमार, इनका रिसेंटली निधन हो गया, राइट। ये केरला से बिलोंग करते हैं एंड यहीं पर इनका निधन हो गया था। इनका जन्म 1949 में हुआ था और ये 74 साल के थे, अभी इनका निधन हो गया, राइट। मार्क करके चलेंगे इनको। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं वेटरन गुजराती फोटो जर्नलिस्ट एंड पद्माश्री अवार्डी जवेरीलाल मेहता। तो जवेरीलाल मेहता ये एक फोटो जर्नलिस्ट हैं, राइट। इनका निधन हो गया इन अहमदाबाद गुजरात। इनका जन्म 1928 में हुआ था और इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2018 में। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। अभी प्रणब मुखर्जी की जो डॉटर हैं, और प्रणब मुखर्जी कौन थे? ये 13th फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, प्रणब मुखर्जी। इनकी डॉटर शर्मिष्ठा मुखर्जी, राइट, इनके द्वारा अभी एक बुक को ऑथर की गई, जो कि है प्रणब माय फादर आर डॉटर रिमेंबर्स, राइट। प्रणब माय फादर आर डॉटर रिमेंबर्स, ये बुक का नाम है, जो कि किन के द्वारा लिखी गई? शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा। ये इनकी बायोग्राफी के ऊपर है प्रणब मुखर्जी की, कि कैसे इनकी लाइफ रही, कैसे इन्होंने एक स्मॉल विलेज से स्टार्ट किया एंड फिर ये प्रेसिडेंट ऑफिस तक इनकी जो जर्नी है उसके बारे में बताया गया, राइट। एंड इसमें प्रणब मुखर्जी एंड इनकी डॉटर शर्मिष्ठा मुखर्जी की लाइफ जर्नी के ऊपर भी बताया गया कि इनका रिलेशनशिप कैसा रहा, कैसे फादर डॉटर का बॉन्ड रहा, राइट। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा 11 दिसंबर को और रूपा पब्लिकेशंस इंडिया के द्वारा इसको पब्लिश करा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं इंपॉर्टेंट डेज। फर्स्ट एवर UN सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 26 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे, right, and it is to recognize the pivotal role of safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all। मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, राइट, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट, वो सेफ होने चाहिए एंड इनको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जानते हैं हम जो व्हीकल्स होती हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब अपनी व्हीकल्स लेके चलें, उसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एंकरेज करने की यहाँ पे बात की गई। तो 26 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। फिर इसी के अलावा वर्ल्ड पोस्ट डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 9 अक्टूबर को। फिर अगर हम बात करें वर्ल्ड साइट्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 12 अक्टूबर को। वर्ल्ड अर्थराइटस डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 12 अक्टूबर को। नेशनल सिनेमा डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 13 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 15 अक्टूबर को। और वर्ल्ड फूड डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 16 अक्टूबर को। तो ये आपके अक्टूबर के भी इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर रिवाइज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। 5th इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हुआ न्यू दिल्ली में एंड 4 MOU साइन किए गए बाय NMF। देन इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट कराया नेट पोलरेक्स 9, ये गुजरात के यहाँ पर हुआ एंड मरीन ऑयल स्पिल से रिलेटेड हम प्रिपेयर रह सके एंड उससे रिलेटेड अलग अलग सिचुएशन से रिलेटेड हम पहले से ही अपनी प्रिपरेशन कर सकें, इसलिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। 8वीं गोवा में हुई थी, 9वीं गुजरात में हुई। देन इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराया 5 डे लॉन्ग मिलेट फेस्टिवल, कहाँ पर? इंडोनेशिया में, ताकि
फूड सिक्योरिटी को एनहेंस किया जा सके इन एशियन कंट्रीज। एंड मिलेट हम जानती हैं कितनी हार्डी क्रॉप है। देन एनपीसीआई ने इंस्ट्रक्ट किया जो भी पेमेंट एप्लीकेशंस हैं जैसे फ़ोनपे हो गया, आपका पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, इनको कि जो भी आपकी इनएक्टिव यूपीआईज है ना उनको डीएक्टिवेट कर दे बाय 31 दिसंबर 2023। देन सीडीएसएल वो पहली लिस्टेड डिपॉजिटरी बन गई टू रजिस्टर मोर देन 10 करोड़ डीमेट अकाउंट्स। एसएनपी ग्लोबल ने इंडिया की फिजिकल ईयर 24 के लिए जो जीडीपी प्रोजेक्ट की गई है वो कितनी है, 6.4%। पहले 6% थी लेकिन 40 बीपीएस से यहाँ पे बढ़ा दी गई। देन ऑथेंटिक ये मैरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर रहेगा 2023 के लिए। एंड्री रेजोलिना इनको री इलेक्ट किया गया एज द मेडागास्कर्स प्रेसिडेंट फॉर द 3rd टर्म। देन रजत कुमार जैन इनको अपॉइंट किया गया पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ फिनो पेमेंट्स बैंक। देन टेनिस की बात करें तो इटली ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा दिया टू विन दिस डेविस कप टाइटल। देन रेडबुल के प्लेयर मैक्स वर्स्टैपेन इन्होंने अभी 2023 की अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। ये 22वीं रेस थी 2023 की और आखिरी थी, और ये उनकी मैक्स वर्स्टैपेन की 19वीं विन थी। मतलब 22 में से 19 किनके द्वारा जीती जा चुकी है, इन्हीं के द्वारा। देन BWF चाइना मास्टर्स की बात करें तो इंडिया के स्वास्तिक राज सात्विक एंड चिराग सेठी, राइट, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे सेकेंड प्लेस आई इन द BWF चाइना मास्टर्स, और यहाँ पे चाइना ने इसको जीत लिया है। देन इंडियन वायलिनिस्ट एंड कर्नाटिक म्यूजिशियन बी शशि कुमार, इनका रिसेंटली निधन हो गया। वेटन गुजराती फोटो जर्नलिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी जवेरीलाल मेहता, इनका निधन हो गया। देन शर्मिष्ठा मुखर्जी, इनकी ये डॉटर हैं किनकी, प्रणब मुखर्जी की, जो कि 13th फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। एंड इनके द्वारा एक बुक ऑथर की गई, प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स। देन फर्स्ट एवर यूएन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे 26 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और हम एक ऑर्बिट और देखी थी, वो थी चार्ली मुंगर, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 99। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप मुझे ये चार्ली मुंगर के बारे में पढ़िएगा ज़रूर, काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, राइट, किनके साथ रहते हैं वो भी बहुत बड़े व्यक्ति हैं। आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। काफ़ी इनकी लाइफ एक हैपनिंग लाइफ रही है, राइट, काफ़ी कुछ आपको इनकी लाइफ से की जर्नी के बारे में भी सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में बहुत बेनिफिट रहेगा। What became the 8th wonder of the world? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा, मार्क करके चलेंगे। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा बना है, वो है 12th सेंचुरी का एक टेम्पल। 12th सेंचुरी का ये टेम्पल रहेगा, 30 साल लगे थे इसकी कंस्ट्रक्शन को। ये है अंगोर वॉट। कहाँ पर है अंगोर वॉट, कंबोडिया में, राइट, कंबोडिया में रहेगा आपका अंगोर वॉट, और ये 8th वंडर बना है ऑफ द वर्ल्ड। ये एक एंशियंट टेम्पल है, 12th सेंचुरी का एंशियंट टेम्पल है, जिसको बनाया गया था किन के द्वारा, किंग सूर्यवर्मन वन, किंग सूर्यवर्मन द सेकंड, किंग सूर्यवर्मन द सेकंड ने इनको बनाया गया था। 30 साल लगे थे इसकी कंस्ट्रक्शन को, एंड 1992 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड कर दिया गया था। कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन रहेंगे, हुन मैनेट। फ्नोम पेन यहाँ की कैपिटल रहेगी, एंड कंबोडियन रियल यहाँ की करेंसी रहेगी। ठीक है, तो अंगोर वॉट यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका 8th वंडर बना है ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट, इसने सरपास किया इटली की पोम्पेई को टू बी द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। इसके अलावा आपसे पूछा जाए, जरा बताओ लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती, तो मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीती गई। अगर मैं बात करूं फिर आईसीसी वर्ल्ड कप की 2023 का, किसके बीच में फाइनल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में। किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीत लिया है, राइट। कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में भी कहाँ पर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जो कि बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वर्ल्ड का, राइट। फिर इसी में अगर पूछा जाए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहेंगे, वो है विराट कोहली। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड कप में 50 सिक्सेस मारने वाले वो पहले बैट्समैन कौन बन गए, वो हैं रोहित शर्मा। ठीक, फिर किन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया फॉर द मोस्ट सेंचुरीज इन एन ओडीआई, वो है विराट कोहली। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंगोर वॉट। ये एक एंशियंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स रहेगा, कंबोडिया में है, 12th सेंचुरी में बनाया गया था किंग सूर्यवर्मन द सेकंड के द्वारा। 30 साल लगे थे इसको बनाने में। एंड अंगोर वॉट ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सिंस 1992। मूविंग ऑन,
इंडिया ने अभी साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डीपन कोऑपरेशन ऑन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विद विच नेशन। तो किस नेशन के साथ मिलकर इंडिया ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की गई। तो इंडिया ने किसके साथ किया ये कॉपरेशन? यूरोपियन यूनियन के साथ। इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करेंगी, जहाँ पर हम देखेंगे कि कई सारी वर्कशॉप्स होंगी, पार्टनरशिप होगी, नॉलेज शेयर होंगी, जिससे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। एंड इन दोनों के बीच में हम जानते हैं जो ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, बेसिकली ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी आपकी हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, चाहे आपका वो फ़ोन हो, चाहे ईयरबड्स हो, लैपटॉप हो, टैबलेट्स हो, इवन गाड़ियाँ हो, ड्रोन्स हो, हर जगह आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वहाँ पे ये सेमीकंडक्टर चिप्स को यूज़ किया जाता है। एंड इसका आने वाले टाइम में हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। इसी इकोसिस्टम को, इसी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंडिया और यूरोपियन नेशन के इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में यहाँ पर ये MOU साइन हुआ। यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं? 27 मेंबर्स रहेंगे और यूरो यहाँ पे करेंसी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। आरबीआई ने अभी कितने अनऑथराइज फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को ऐड किया इन द अलर्ट लिस्ट? फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है? जब फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है जब आप फॉरेन करेंसीज को बाय एंड सेल करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल $1 अभी 83 चल रहा है और मैंने बाय कर लिए $100, करेक्ट। कल $1 84 का हो गया, तो फिर मैंने ये $100 को बेच दिया। मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? ₹1 का हुआ पर डॉलर। तो मेरे को $100 थे तो मेरे को ₹100 का यहाँ प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह की भी ट्रेडिंग काफ़ी सारे लोग करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग इसको कहते हैं, राइट। और ये प्लेटफॉर्म्स को, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी आरबीआई के द्वारा ऐड की गई हैं ऐसी 19 फॉरेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को इन देयर अलर्ट लिस्ट, जो कि वो बताती हैं कि काफ़ी रिस्की है। इस पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो इट कैन बी रिस्की, आपका पैसा डूब भी सकता है और ये लेके भाग भी सकते हैं, राइट। तो इससे जो अलर्ट लिस्ट में जो टोटल एंटिटीज़ हैं वो कितनी हो गई हैं? 75 टोटल एंटिटीज़ हो गई हैं इन दिस अलर्ट लिस्ट ऑफ आरबीआई। ठीक, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर 1935 में इस्टेब्लिश करा गया था। फिर इसी के साथ साथ बताओ, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस कब ऑब्जर्व किया हैं? 16 नवंबर। नेशनल प्रेस डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 16 नवंबर। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 17 नवंबर। देन वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 17 नवंबर। इंटरनेशनल मेंस डे, ये भी आपका 19 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, ये आपका 20 नवंबर। अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे 20 नवंबर। वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे, ये भी आपका 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको हम संविधान दिवस भी बोलते हैं। 26 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। 26 नवंबर को ये कहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था एंड इसको लागू करा गया कब? 26 जनवरी को, राइट। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। और 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो अगर हम बोले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, ये लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 26 जनवरी को, बन के रेडी कब हो गया था? 26 नवंबर को, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया था हमने? 26 नवंबर 2015 को बनाया गया था, राइट। मार्क करके चलेंगे। एंड 2015 ये 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी आपकी डॉक्टर BR अम्बेडकर की, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर नेशनल मिल्क डे। 26 नवंबर को भी ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड जो अगर मिल्क की बात करें तो फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन कौन है? वो है डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन। इनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि व्हाइट रेवोल्यूशन आपके मिल्क से ही सिंबलाइज रहता है। तो वर्गीस क्यूरिन, डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन की बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मिल्क डे, और 26 नवंबर को हमने ये ऑब्जर्व किया गया, और 10th नेशनल मिल्क डे इस बार हमने ऑब्जर्व किया, और इनका 102nd बर्थ एनिवर्सरी थी वर्गीस क्यूरिन की 2023 में। चलिए नेक्स्ट आ जाता है 75th एनसीसी रेजिंग डे। 26 नवंबर को ये डे हमने ऑब्जर्व किया। एंड एनसीसी रेजिंग डे को जनरली सेलिब्रेट करते हैं ऑन द 4th संडे ऑफ नवंबर, राइट। एंड एनसीसी का जो कमिटमेंट है, करेक्ट, शेपिंग द यूथ एंड कोर वैल्यूज़ को इम्पार्ट करने के लिए, उसके लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड 4th संडे को ऑफ नवंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार ये 26 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया। 75th रेजिंग डे था, और इसको एनसीसी डे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द फर्स्ट एयरलाइन टू ऑपरेट फ्लाइट्स फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सबसे पहले तो याद रखेंगे इसका जो कोड रहेगा ना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वो क्या है? DXN इस कोड से सिंबलाइज किया जाएगा ये, राइट। फिर याद रखेंगे ये एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इसी को एक और नाम से जानते हैं जेवर एयरपोर्ट,
राइट। ये कहाँ पे बन रहा है? गौतम बुद्धा नगर डिस्ट्रिक्ट में इन यूपी ये बन रहा है। एंड ये दिल्ली एनसीआर रीजन का, याद रखेंगे, दिल्ली एनसीआर रीजन का ये सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। पहला तो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पहली एयरलाइन कौन सी बनी जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अभी अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगी कार्गो के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये है इंडिगो, राइट। तो इंडिगो याद रखेंगे, इंडिगो एयरलाइन ये वो पहली एयरलाइन बनी जिन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया फ्रॉम दिस जेवर एयरपोर्ट या फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड बाय द एंड ऑफ 2024 ये ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक। और याद रखेंगे जैसा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, इसका एम रहेगा टू बिकम द इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट। अगर इंडिगो एयरलाइंस की हम बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? पीटर एल्बर्स। हेडक्वार्टर रहेगा इसका गुरुग्राम हरियाणा में। एंड 2006 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है फिर नेम द आयरिश ऑथर हु वन बुकर प्राइज 2023। तो कौन है वो आयरिश ऑथर जिनको अभी बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? वो है पॉल लिंच, राइट। पॉल लिंच की एक नॉवल है जो जिसका नाम है प्रॉफिट सॉन्ग, राइट। प्रॉफिट सॉन्ग ये आपका नॉवल का नाम रहेगा जिनके लिए पॉल लिंच को अभी बुकर प्राइज से यहाँ पे सम्मानित करा गया। ये जो प्रॉफिट सॉन्ग है इसको पब्लिश किया गया था वन वर्ल्ड के द्वारा, राइट। एंड इनको अवार्ड दिया गया किनके द्वारा? 2022 की जो बुकर विनर थी वो थी शहान करुणा टिलिका। इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया ड्यूरिंग एन सेरेमनी जो कि लंदन यूके में हुई। इनको 50,000 पाउंड स्टर्लिंग के सम्मानित किया गया और आयरिश नाम की ट्रॉफी से इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया, ठीक है। तो मार्क करके चलेंगे 2023 के विनर कौन रहेंगे बुकर प्राइज के? वो है पॉल लिंच फॉर हिज नॉवल जो कि है प्रॉफिट सॉन्ग, और ये आयरिश ऑथर रहेंगे, ठीक। चलिए इसके अलावा देख सकते हैं जो बुकर प्राइज होता है ये दिया जाता है टू द फिक्शन राइटर्स बाय एनी नेशनैलिटी रिटन इन इंग्लिश, एंड इसको पब्लिश होना चाहिए यूके या फिर आयरलैंड में। पहली बार 1969 में अवार्ड दिया गया था। एंड जो विनर हैं 50,000 पाउंड स्टर्लिंग के से इनको सम्मानित किया जाता है एंड 2500 पाउंड स्टर्लिंग ईच टू द 6 शॉर्ट लिस्टेड ऑथर्स। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट एल डाफरा प्रोजेक्ट। दूसरा, एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्होंने $500 मिलियन का लोन अप्रूव किया टू एनहेंस द टर्शरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन इन विच स्टेट। तीसरा, विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर पॉलिसीज इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन बाय असोचैम। तो ये तीन आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत कम बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं। एंड जो भी बच्चे वीडियो को देख के और उनको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, वो चाहते हैं ऐसा कंटेंट डेली बेसिस पे आता रहे, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़, इन लिंक को, इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करा करो ताकि उन्हें भी पता लग सकते कि ये कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर करंट अफेयर्स, राइट। हम सारे करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे एक बहुत अच्छे तरीके से डीप में एनालिसिस करके वो करंट अफेयर्स आपको प्रेजेंट करते हैं ताकि आप सिर्फ रटे ना, उनको याद रख सके, राइट। उससे क्या होगा, आपकी रिवीजन भी होती रहेगी डेली बेसिस पे। हम कोशिश करते हैं कि पुराने करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराएं और आपको नई चीज भी डिटेल में समझा सके ताकि आपको पूरी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.